reduction formula for I equal to integral of the type e to the power ax and sine to the power nbx. Okay, so by using Eilert, so this one is my trigonometric function and this one is an exponential function, so this will be assumed as first function and this will be assumed as second function. Okay, so we will apply the integration by parts here. So that is I equal to first function, that is sine to the power n dx integral of second function dx minus integral of differentiation of first, that is sine to the power n bx and into integral of second function dx and whole dx. So this will be I equal to sine to the power n dx, integral of this one is what? It is e to the power ax divided by a minus this integration, this differentiation will become n sine to the power n minus 1 bx, और sin bx का दोबारा हो जाएगा बिकॉज चेन रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, that will be b cos bx. so b cos bx. okay, finally इसका हो गया into e to the power ax divided by a. okay, so next step में हम क्या करते हैं कि sin to the power n dx e to the power ax divided by a minus this will the constant कलेक्ट करेंगे n b और a. this will be nb by a and this will become, इसको ऐसे लिख सकते हैं e to the power ax हमने लिखा और sin to the power n minus 1 bx n minus 1 bx and cos bx. again it's a trigonometric function, so हम by parts फिर से अप्लाई करेंगे. so this one is my first function and this one is my second function. You know that differentiation is easy for this one. I have to apply the product rule. so this will become I equal to e to the power ax sine to the power n bx divided by a minus it is nb by a. look at, open the bracket. okay, so first function, so my first function is sine to the power n minus 1 bx cos bx, integral of this one is what? it is a to the power ax by a minus integral of differentiation of first function. so for differentiation what I will do, I will apply the product rule. that is, मान लीजिए कि ये हमारा पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो इसमें प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन वाला अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन साइन टू द पावर n माइनस 1 bx differentiation of second function, that is cos bx. so it will be minus b sin bx. all right, minus b sin bx प्लस सेकेंड फंक्शन. तो मेरा सेकेंड फंक्शन क्या है इसमें? cos bx and in differentiation of this one will be n minus 1 sin to the power n minus 2 bx और sin bx का दोबारा होगा, so that will give you b cos bx. okay, so ये हमारा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज e to the power ax डिवाइडेड बाई a और इसका dx होगा. ओके, dx. अब ये पूरा ब्रैकेट यहाँ बंद होगा. क्लियर? तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो e to the power ax sin to the power n bx डिवाइडेड बाई a माइनस, लुक एट दिस वन, nb बाई ए. अब इसको हम अंदर भेजेंगे, प्रोडक्ट करेंगे मतलब, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो nb बाई ए और ए मिलके स्क्वायर. सो nb अपॉन ए स्क्वायर एंड दिस इज e to the power ax sin to the power n minus 1 bx and cos bx. okay, now look at this one. दिस इज, देखिए b इससे हमारा ये बाहर है, b ये वाला b, ये वाला b, ये वाला b, ये दोनों b हमारे बाहर आ जाएंगे. तो जब ये बाहर आएंगे तो एन बी स्क्वायर और a ये बचेगा, तो ये भी a बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस एन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर.
तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ ताकि क्लियरली बिल्कुल दिखाई पड़े कि हमने क्या क्या टर्म्स हमने लिए हैं। सो दिस इज एन बी बाई ए स्क्वायर, एन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स को हम ऐसे लिख लें, ई टू द पावर एक्स, इन ब्रैकेट क्या बचेगा हमारे पास, देखिए एन, पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो एन माइनस वन साइन टू द पावर एन माइनस टू, इट इज़ बी एक्स, एंड कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स क्या हो जाएंगे, दो हैं तो कॉस स्क्वायर बी एक्स हो जाएगा। ओके, माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन और एक साइन एक्स, तो एक साइन और साइन मिलके क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू द पावर एन बी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ओके, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एन बी अपॉन ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन माइनस वन बी एक्स एंड कॉस बी एक्स। ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये कॉस स्क्वायर बी एक्स को हम लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर बी एक्स। वॉट विल बी द बेनिफिट, बेनिफिट ये होगा कि हमारा इंटीग्रल जो है रिपीट हो जाएगा, जो हम इंटीग्रल लेके चले थे वो हमारा रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में वो टर्म लेते आएंगे। तो इसको ठीक से लिख लेते हैं, तो दिस विल बिकम एन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स एन माइनस वन साइन एन माइनस टू बी एक्स, और इसको लिख लेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर बी एक्स माइनस साइन टू द पावर एन बी एक्स और डी एक्स। ओके, लुक एट दिस वन। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई हमारा हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स, या सिर्फ मैं इतने टर्म को पहले सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि इन दोनों को तो सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, ये तो एज इट इज़ रहेंगे, केवल इस टर्म को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन माइनस टू बी एक्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन माइनस वन बाहर आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे एन माइनस वन। अभी इतना सॉल्व कर रहे हैं केवल, ठीक है, एन माइनस वन। अब देखिए ये टर्म माइनस के साथ आएगा तो ये डी एक्स हो जाएगा माइनस नेगेटिव ऑफ इट इज़ एन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स, इंटीग्रल ऑफ कोर्स इंटीग्रल रहेगा ई टू द पावर ए एक्स, और एन माइनस वन भी आएगा, एन माइनस वन भी यहाँ आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, या फिर इसको एक काम करते हैं, इसको पहले अंदर से सॉल्व कर लेते हैं। तो एन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन माइनस टू बी एक्स, ओके, एन माइनस वन, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। एन माइनस वन लिखा, ई टू द पावर ए एक्स साइन एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन ई टू द पावर ए एक्स, और ये हो जाएगा साइन एन माइनस टू, और ये टू हो जाएगा, तो साइन टू द पावर एन बी एक्स हो जाएगा। ओके, और ये वाला हमारे पास हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन बी एक्स। अब ठीक है, अब आसानी से ही सिंप्लीफाई हो जाए, तो ये ब्रैकेट में रहेगा और डी एक्स, ठीक है। अब देखिए एक जो है ई टू द पावर ए एक्स और ये प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एन टाइम्स ही बचेगा, और ये सिर्फ एन टाइम्स नहीं बचेगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं पूरा एक्सप्रेशन लिखता हूँ, आई की वैल्यू ई टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एन बी अपॉन ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन माइनस वन बी एक्स कॉस बी एक्स। ये वाला टर्म अब देखिए इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस एन इंटू एन माइनस वन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स और साइन टू द पावर एन माइनस टू बी एक्स डी एक्स। अब देखिए इस टर्म को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन स्क्वायर दे देगा हमें, तो ये जाएगा माइनस एन स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, ये एन और ये मिलके हो जाएगा, और ये टर्म बच जाएगा हमारे पास ई टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन बी एक्स, ओके, डी एक्स।
फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया बी स्क्वायर एन बी स्क्वायर एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन आप ध्यान से देखें तो ये हमारा आई था जो इंटीग्रल हम लेके चले थे, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस टर्म को उधर ट्रांसपोर्ट कर लूँगा। तो इस टर्म को जब मैं ट्रांसपोर्ट करूँगा तो आई टाइम्स, देखिए 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन, ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस देखिए क्या होगा, तो ये चीज़ हमारी उधर आ गई, तो हमारा बचेगा क्या, एन बी अपॉन ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन माइनस 1 बी एक्स कॉस बी एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स और साइन टू द पावर एन माइनस 2 बी एक्स डी एक्स। ये एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनल आ गया। इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेसिकली आई की। ओके, पहले ये एक्सप्रेशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन हमारा किस तरह से आया है। ओके, ये बहुत रिडक्शन फार्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप कैलकुलेशन को जो भी करें उसमें ये देखें कि कितना आसानी से वो सिंप्लीफाई हो सकता है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, तो क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो जाता है कई बार, जैसे इस क्वेश्चन में बहुत टीडियस तो नहीं है बट फिर भी डिफरेंट हो जाता है, तो ये कैलकुलेशन में बहुत स्लो करना चाहिए ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो। ओके, तो जस्ट मैं आई की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँगा, उस टर्म को उधर ले जाऊँगा जो ये है हमारा, और फिर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चाहे तो मैं इसको भी इधर था, अभी इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो हो जाएगा आई टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इससे क्या क्या कॉमन निकल सकता है, ई टू द पावर ए एक्स कॉमन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा तो ए का यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, और अगर मैं साइन टू द पावर एन माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ कॉस बच जाएगा और यहाँ एक साइन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन माइनस 1 बी एक्स, ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, देखिए ई टू द पावर ए एक्स कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन, तो नीचे स्क्वायर है तो ये ऊपर हो जाएगा ए, तो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, ए साइन और साइन टू द पावर एन माइनस 1 भी कॉमन है तो एन वाला चला जाएगा और ये माइनस 1 वाला ऊपर चला जाएगा, तो साइन बी एक्स बचेगा, नेगेटिव ऑफ एन बी कॉस बी एक्स, ये तो आसानी से दिख रहा है, ये भी बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, एन बी बाहर हो गया, एन बी बचेगा, तो एन बी हमने यूज़ कर लिया यहाँ, और ये बाहर सब कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, और प्लस हमारे पास जो टर्म बचेगा दैट इज़ एन इंटू एन माइनस 1 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन माइनस 2 बी एक्स डी एक्स, ये वाला टर्म आ गया, यानी कि इस इंटीग्रल को हमने इस फॉर्म में इस एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस किया है। ओके, तो आई आप ध्यान से देख सकते हैं कि स्क्वायर सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे हमारा जो फाइनल इंटीग्रल आएगा ई टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन माइनस 1 बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या होगा, ए साइन बी एक्स माइनस एन बी कॉस बी एक्स, है ना, और प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एन स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन माइनस 2 बी एक्स डी एक्स, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ई टू द पावर, अब ये फॉर्मूला हमारा रिडक्शन फार्मूला आ गया, तो ये फॉर्मूला अब याद तो रख नहीं सकते हैं, बट टेक्निक ये होनी चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस रिडक्शन फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेशन यू कैन डू प्रॉब्लम्स, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस रिडक्शन फार्मूला। जैसे मान लीजिए हमें ई टू द पावर ए एक्स और साइन बी एक्स का इंटीग्रल कैलकुलेट करना है,
तो देखिए प्रोसीजर यही है, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, अगर ये फॉर्मूले में n की वैल्यू देखिए साइन टू द पावर n bx का हमने इंटीग्रल कैलकुलेट किया है। हमने इंटीग्रल किसका कैलकुलेट किया है, ये देखिए साइन टू द पावर n bx का। तो n की वैल्यू जैसे ही 1 सब्सिट्यूट करेंगे हम, तो हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया। तो n की वैल्यू 1 इस फॉर्मूले में सब्सिट्यूट करें, या फिर इसमें आइलेट रूल, इसको आई एज्यूम कर लें और इसको आइलेट रूल से सॉल्व करें। फिर से क्या होगा, इंटीग्रल रिपीट होगा, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा पूरा, सिर्फ यहाँ बचेगा। तो n की वैल्यू ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, यही हमारा इंटीग्रल का फॉर्मूला होता था, हम जो क्लास 12th में डिराइव करते थे। इन द सिमिलर वे e टू द पावर ए एक्स और cos टू द पावर n bx को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम मेथड। जिस तरह से हमने ये वाला रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव किया, इन द सिमिलर वे हम इसको भी डिराइव कर सकते हैं। ऑलराइट।